Alright guys, welcome back, and today in this video we are going to learn the bacteria and cyanobacteria. In our previous video we have discussed the bacteria and cyanobacteria, which is the chapter number 4 according to the Board of Secondary Education Karachi for the students of grade 9 and grade 10. So basically it is the continued lecture, and in the last video we have discussed the general characteristics of bacteria, shapes of bacteria, physiology of bacteria, importance of bacteria, and cyanobacteria and nostoc we will study today. So what are the bacteria? बैक्टीरिया वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो ज़मीन की गहराइयों से लेकर पहाड़ की ऊंचाइयों तक हर किस्म के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। और ये बैक्टीरिया न सिर्फ सर्वाइवल ज़मीन की गहराइयों से पहाड़ की ऊंचाइयों तक, बल्कि गर्म से गर्म और ठंडे से ठंडे टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। बैक्टीरिया तमाम क्रिएचर्स में वाहिद ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो तमाम टेम्परेचर्स को बर्दाश्त कर सकता है, और ना सिर्फ टेम्परेचर को बल्कि प्रेशर, इन्वायरमेंटल चेंजेस को भी बैक्टीरिया बर्दाश्त कर सकता है। So what are the prokaryotic organisms? In order to study bacteria, we must be familiar with the terminology prokaryotes. So all those organisms which do not have nucleus in their body. अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और जेनेटिक मटेरियल, इन चार चीज़ों की प्रॉपर पोजीशन और डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। दैट इज व्हाई these organisms are called prokaryotic organisms. Instances includes bacteria, cyanobacteria, viruses, etc. So the classification of organisms are two in number on the basis of their nucleus. यानी न्यूक्लियस की बुनियाद पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक ग्रुप है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और दूसरा जो ग्रुप है वो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस यानी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस अपने तमाम ऑर्गेनेलीज के साथ मौजूद होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि बैक्टीरिया की बॉडी में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज सेल वॉल। Inside the cell wall there is another membrane which is called plasma membrane. This plasma membrane is also known as cell membrane. Inside the plasma membrane there is a fluid, and that fluid is known as cytoplasm. The cytoplasm contains some cytoplasmic organelles or cell organelles which are chromosomal DNA responsible for the replication, ribosomes responsible for the synthesis of protein. Similarly, plasmid DNA, which is extra genetic material only present in the bacteria. Some bacteria may have capsule, and these capsules are extra covering rather than cell wall and plasma membrane, and these capsules are responsible to protect the bacteria during unfavorable conditions. Bacteria moves by the help of the thread-like structures known as flagella. Similarly, some villi are also present on the surface layer, and these villi helps in the transfer of genetic material during the conjugation. And what is conjugation? A type of sexual reproduction. अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान में डिफरेंस देखें तो मैंने अभी क्लियर किया द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। अगर सेल में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद है तो ऐसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। बट इफ द ट्रू और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, द सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो बोथ ऑफ द सेल्स हैव सेल वॉल, both of the cell may have plasma membrane, both cell contain cytoplasmic organelles like the
Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. But the only and the main difference between both of these cells is the nucleus. दोनों cells के दरमियान में जो वाज़ेह फ़र्क है वो न्यूक्लियस है। यहाँ पे अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड मौजूद है और ये साइटोप्लाज्म में किसी भी जगह पर मौजूद हो सकता है। बट इन कॉन्ट्रास्ट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस स्पेशली एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में ड्यू टू द लार्ज वैक्यूल साइज ये न्यूक्लियस पेरिफेरी यानी कि सेल मेम्ब्रेन के साथ या सेल के बॉर्डर पे मौजूद होता है। हमने बात की है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं विच कैन नेवर बी सीन बाय द नेकेड आई, जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, और दीज ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें देखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़े, ऐसे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक की टर्मिनोलॉजी अभी हमने समझी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड पॉइंट भी हमने स्टडी किया, पिलाई हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। हमने बात की कि पिलाई वो स्ट्रक्चर है जो कॉन्जुगेशन में यानी कि जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैप्सूल प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है। इसी तरह से बैक्टीरिया में फूड रिजर्वेशन के भी कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया उन्हें इस्तेमाल करते हैं। हम बार बार एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन किसे कहते हैं? वो कंडीशन जब बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिल रहे हों तो ऐसी कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन कहलाएगी। या वो कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया को रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत तो है लेकिन एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसी कंडीशंस अनफेवरेबल कंडीशन कहलाती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। जाहिर सी बात है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी मौजूद होगा, न्यूक्लियोलस भी मौजूद होगा और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोलस में लाई करेगा। बट एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट तो सेल ऑर्गेनेलीज आर आल्सो एब्सेंट। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में दो स्ट्रक्चर्स के जरिए हो सकती है। द फर्स्ट मे बी द मीजोसोम्स एंड द सेकंड वन इज द सेल मेम्ब्रेन। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में मीजोसोम या सेल मेम्ब्रेन के जरिए पॉसिबल होती है। हमने बात की बैक्टीरिया मूवमेंट कहाँ से करता है या किस स्ट्रक्चर के जरिए करता है। तो दैट स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प द बैक्टीरिया टू मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इज द फ्लैजिलम। वो टेम्परेचर या वो नॉर्मल टेम्परेचर जो बैक्टीरिया रेजिस्ट कर सकते हैं जिस पर वो 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑल्दो सम बैक्टीरिया कैन ऑल्सो मेक देयर सर्वाइवल पॉसिबल इवन ग्रेटर देन 45 डिग्री सेल्सियस और लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। And the sizes ranges from 0.1 micron to 2 micron in size bacteria में found. Now talking about the shapes of bacteria, तो बैक्टीरिया 4 मुख्तलिफ शेप्स में मौजूद होता है। कॉक्साई बैक्टीरिया बैसिलाई शेप में मौजूद हो सकता है, स्पाइरेला शेप में बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है या विब्रियो कोमा शेप में बैक्टीरिया मौजूद होता है। बैक्टीरिया की शेप ऑन द बेसिस ऑफ कॉक्साई यानी कि सर्कुलर स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया 4 फॉर्म में पाया जा सकता है। या तो बैक्टीरिया सिंगल अकेले रहता है, तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि सर्कुलर स्ट्रक्चर में और अकेला पाया जाता है हम ऐसे बैक्टीरिया को मोनोकॉक्साई कहते हैं। इसी तरह से अगर दो बैक्टीरिया जो कि सर्कुलर स्ट्रक्चर में आपस में पेयर बना के रहते हैं ऐसे बैक्टीरिया को हम डिप्लोकॉक्साई कहते हैं। वो बैक्टीरिया जो सर्कुलर ही स्ट्रक्चर में होंगे लेकिन चेन बनाकर रहते हैं ऐसे बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकॉक्साई कहलाते हैं। जबकि अगर सर्कुलर स्ट्रक्चरल बैक्टीरिया क्लस्टर फॉर्म में पाए जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनी स्टेफिलोकॉक्साई कहलाती है। ये तो सर्कुलर स्ट्रक्चर की बात है। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया रॉड शेप है और सिंगल पाया जाता है तो हम उसे कहते हैं मोनोबैसिलस। लेकिन अगर दो बैक्टीरिया जो कि रेक्टेंगुलर इन स्ट्रक्चर या रॉड शेप में स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे बैक्टीरिया डिप्लोबैसिलस कहलाते हैं। अगर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर रॉड शेप है और ये रॉड शेप बैक्टीरिया आपस में चेन बनाकर रहते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया की चेन को
हम स्ट्रेप्टोबैसिलस करें। इसी तरह से बैक्टीरिया स्पाइरला कॉइल शेप में भी मौजूद हो सकता है और स्लाइटली कर्व या कॉमा शेप में भी बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है, जिसे हम विब्रियो कोमा शेप कहते हैं। इन शेप्स को अगर हम देखें तो ये बज़ाहिर शेप्स नज़र किस तरह से आती हैं, तो कॉक्साई जैसे हमने बात की सर्कुलर इन स्ट्रक्चर और स्फेरिकल में भी, as there are two bacteria in number, so the name is diplococci. If there is a bunch or cluster of the bacteria which are circular in structure or rounded in structure, then the name is known as the staphylococci. इसी तरह से अगर ये चेन मौजूद होगी सर्कुलर स्ट्रक्चरल बैक्टीरिया की, तो चेन कहलाती है स्ट्रेप्टोकोक्साई। हमने बात की बैसिलस की चेन की, इसी तरह से हमने बात की है विब्रियो शेप्ड या स्पाइरला शेप की। सो ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। हम अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें तो हम बैक्टीरिया की शेप्स स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड और स्टडी अबाउट द रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एज वेल एज यूजफुल हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो बैक्टीरिया को हम 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले एरोबिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिन्हें अपनी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, यानी वो बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन गैस चाहिए जिसके ज़रिए वो रेस्पिरेशन करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। जबकि वो बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत नहीं होती रेस्पिरेशन के लिए, ऐसे बैक्टीरिया एनएरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। और वो बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उन्हें ऑक्सीजन गैस अगर मिल जाए तो भी वो सर्वाइव करेंगे और अगर ऑक्सीजन गैस ना मिले तो भी वो सर्वाइव करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया माइक्रो एरोफाइल्स कहलाते हैं। सो रिपीटिंग, on the basis of respiration there are 3 types of bacteria: aerobic bacteria which required oxygen, anaerobic bacteria which doesn't require oxygen, and the microaerophiles which can live in both conditions. There may be presence of oxygen or it may be in the absence of oxygen. Now the topic is the nutrition and bacteria. On the basis of nutrition, bacteria can be categorized or classified into the 2 groups. Number 1, autotrophic bacteria and number 2, heterotrophic bacteria. Autotrophic bacteria हम ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो अपना खाना, फूड कंटेंट खुद से बना सकते हैं। जबकि heterotrophic बैक्टीरिया की वो क्लास है जिसमें बैक्टीरिया अपना खाना खुद से नहीं बनाता बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को हासिल करता है। तो पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो दोज बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जो कि अपना खाना खुद से बनाएंगे, ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो बज़ाहिर अपना खाना खुद से बना सकते हैं, तो इनके पास खाना बनाने के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं या बैक्टीरिया की 2 कैटेगरीज होती हैं। यानी बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक तो है, लेकिन ऑटोट्रॉफिक होते हुए भी बैक्टीरिया को हम 2 मजीद डिविजन्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। नंबर 1, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिनकी बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद है और इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म करके अपने फूड को तैयार करते हैं। जबकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनकी बॉडी में ग्लूकोज बनाने के लिए या एनर्जी बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म नहीं हो सकता, यानी क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खाना अपना तैयार कर सकते हैं। ये कैसे अपना खाना तैयार करते हैं? ये बेसिकली केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अगर हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन देखें तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच कंटेन क्लोरोफिल, वो बैक्टीरिया जिनकी बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद है। याद रखेंगे, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म which has chlorophyll in his body, हर वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद है, that is photosynthetic organism. Like if the bacteria has chlorophyll, then the bacteria is photosynthetic bacteria. इसी तरह से प्लांट
अगर क्लोरोफिल मौजूद है, डेफिनेटली प्लांट्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो वो प्लांट फोटोसिंथेटिक प्लांट्स कहलाएंगे। इसी तरह से एलजी, चूंकि इसकी बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद है, तो एलजी भी अपना खाना खुद से तैयार कर सकता है। मतलब अगर बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद है तो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से तैयार करता है, एंड दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब चूंकि इस बैक्टीरिया की बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद है, लिहाजा ये अपने खाने को खुद से तैयार कर सकते हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दूसरी क्लासिफिकेशन हमने देखी वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं? दोज बैक्टीरिया विच सिंथेसाइज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक है, कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस से मिलकर बने हैं, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करके बैक्टीरिया एनर्जी हासिल करता है। इस तरह से ये बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक है। सेकेंड टाइप के बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफिक है, और हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो अपने खाने को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। सो हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तीन क्लासिफिकेशन है। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया नंबर 1, नंबर 2 सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, एंड नंबर 3 पैरासाइटिक बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया अपना फूड कंटेंट किसी और से हासिल करे तो हीटरोट्रॉफिक है, और हीटरोट्रॉफिक होते हुए ये बैक्टीरिया तीन तरह का हो सकता है, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक। इन तीन तरह की क्लासिफिकेशन में ये भी बात याद रखनी है कि ओनली द सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच डिपेंड ऑन डेड फूड सब्सटेंसेस या डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू गेट देयर फूड। मतलब सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं, मरी हुई चीजों से अपने खाने को हासिल करते हैं, जबकि सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक बैक्टीरिया अपना खाना लिविंग बॉडी से ही हासिल करते हैं। इनकी डेफिनेशंस अगर हम देखें तो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया को पहले हम स्टडी करते हैं। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आर द टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी बात की कि वो बैक्टीरिया जो अपना खाना डेड सब्सटेंसेस से हासिल करे। These bacteria are actually useful bacteria because they help in the cleaning of environment. हमारे माहौल को साफ सुथरा रखने में ये बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। लाइक हम देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, कोई कैट है, कोई डॉग है, अगर हम फॉरेस्ट में देखें तो एलिफेंट्स, लाइन टाइगर की डेथ हो गई है। इसी तरह से एनिमल्स की डेथ हमारी ज़मीन पे मुसलसल होती रहती है कहीं ना कहीं। तो अगर ये डेथ हो जाए और उस डेथ के होने के बाद सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एग्जिस्ट ना करे, तो उन ऑर्गेनिजम्स, उन डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उन डेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो रप्चर्ड होने के बाद की तमाम एबिलिटीज़ होती हैं एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करने के, या जिस तरह से वो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज करते हैं, तो द सर्वाइवल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म will not be possible in any ways। किसी भी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉसिबिलिटी इस दुनिया में खत्म हो जाएगी। तो these saprophytic bacteria, what does they do? They kill the microorganisms as well as the multicellular organisms to protect the environment. Next is the symbiotic bacteria. Bacteria are those which form colonies to get their food। यानी ये वो बैक्टीरिया हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कॉलोनी बना के रहते हैं, एंड द कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज। अब ये कॉलोनी जिस ऑर्गेनिज्म के साथ होगी, यानी बैक्टीरिया के साथ कॉलोनी नहीं बना रहा, बल्कि बैक्टीरिया किसी दूसरे यूनिसेलुलर या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के साथ अपनी कॉलोनी बनाता है। किस लिए? इन ऑर्डर टू गेट देयर फूड कंटेंट, अपने खाने को हासिल करने के। ये भी याद रखेंगे कि सच टाइप ऑफ कॉलोनीज आर बोथ बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। मतलब दोनों ऑर्गेनिजम्स के लिए ये कॉलोनी हेल्पफुल या बेनिफिशियल होती है। इसमें एक बैक्टीरिया अपना खाना
तैयार करता है, जबकि दूसरा बैक्टीरिया या दूसरा ऑर्गेनिज्म उन फूड इंग्रेडिएंट्स को जमा करके लाता है जिसके जरिए खाना बनाया जाएगा। मतलब लेट्स सपोज बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है। फिर हम बात करते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में एक ऐसा बैक्टीरिया हमारे पास है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन इस बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये फूड इंग्रेडिएंट्स को यानी कि खाना बनाने के लिए जो सामान ज़रूरी है उसे जमा करके लेकर आ सके। तो ये बैक्टीरिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कॉलोनी बनाएगा और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म इन फूड इंग्रेडिएंट्स को जमा करके लेकर आता है और ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म करके खाने को तैयार करता है। इस तरह एक ऑर्गेनिज्म इंग्रेडिएंट्स को जमा कर रहा है यानी कि कंडक्शन ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, जबकि दूसरा प्रोडक्शन ऑफ फूड कर रहा है। इस तरह दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए फायदेमंद। तीसरे जो टाइप के बैक्टीरिया हैं दैट आर पैरासाइटिक बैक्टीरिया, एंड दीज बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम द लिविंग होस्ट। किसी लिविंग होस्ट से अपना खाना हासिल करेंगे, लेकिन जिस लिविंग होस्ट से ये अपना खाना हासिल करेंगे वो लिविंग होस्ट को ये बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाता है। जैसे हम देखते हैं अपनी रूटीन में, अगर कोई डिजीज़ हमें हो जाती है, लाइक लेट्स सपोज एक डिजीज़ है ट्यूबरक्यूलोसिस, दैट डिजीज़ इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब ये डिजीज़ हुई क्यों? बेसिकली ये बैक्टीरिया हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटर करता है, एंटर करने के बाद फूड कंटेंट हासिल करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और ये डिजीज़ कॉज करता है। सो इट्स मीन व्हाट, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड कंटेंट हासिल कर रहा है, अपना फ़ायदा हासिल करता है, लेकिन होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो ये यहाँ तक की जो बात हमने की न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की, तो इसे समराइज फॉर्म में हम स्टडी कर लेते हैं कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की बुनियाद पर हमने दो कैटेगरीज बनाई। द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड द सेकंड इज हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से हैं? वो बैक्टीरिया जो कि अपना खाना खुद तैयार करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं करते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं, जिसकी दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। द फर्स्ट वन वाज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं एज बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर बॉडीज, and by the help of this chlorophyll they undergo the mechanism of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में जाएंगे, अपना खाना तैयार करेंगे। ऐसे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। दूसरी टाइप हमने बात की थी जो कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया की वो क्लास है जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी ये इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करते हैं और अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। इसी तरह से हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना किसी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हासिल करते हैं, और जिन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ये डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से खाना हासिल करते हैं उन्हें ये अपने एटमॉस्फेयर को यानी हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का मैकेनिज्म भी अदा करते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कि अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं और उन्हें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। जबकि पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना हासिल करते हैं और उन्हें बदले में नुकसान। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर अहमियत के हामिल हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन्स। बैक्टीरिया यूज इन द लेबॉर्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स, यानी कि बैक्टीरिया लेबॉर्ट्रीज में हम इस्तेमाल करते हैं, और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन के लिए। याद रखेंगे एंटीबायोटिक इज द क्लास ऑफ ड्रग विच इज स्पेसिफिकली यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये एंटीबायोटिक ड्रग्स भी बज़ाहिर खुद बैक्टीरिया से ही लेबॉर्ट्रीज में हम तैयार करते हैं। एंटीबायोटिक ड्रग्स कौन सी हैं? लाइक पेनिसिलिन, थायरोथाइसिन, इस तरह की ड्रग्स हम बैक्टीरिया से तैयार करते हैं इन डिजीजेस से लड़ने के लिए। इसी तरह से बैक्टीरिया एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का क्या इस्तेमाल है? इट इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी।
इंडस्ट्रीज में हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं और किस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं? द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ चीज, बटर, कटिंग ऑफ मिल्क। फर्मेंटेशन की बात हम बार बार करते हैं कि वो प्रोसेस जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और ऐसे मैकेनिज्म्स, ऐसे रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है। सो ऑल दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी beneficial for us in order to prepare our food content। अब वो फूड क्या हो सकता है? जैसे चीज़ बनाने का अमल, बटर तैयार करने का अमल, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये तमाम प्रोसेसेस के लिए हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। The question to describe the importance of bacteria has been asked in the year 2015, 2011, 2009 and 2005. Now, what are the harmful aspects of bacteria? बैक्टीरिया हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं? बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस टू एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा। मतलब बैक्टीरिया इंसानों को, जानवरों को, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो नुकसान किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ द डिजीजेस लाइक द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक प्लांट डिसऑर्डर है। इसी तरह से फाइन ब्लाइट ऑफ पोटैटो प्लांट डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस की हमने बात की, उनके इंसानों में हो जाता है। तो बैक्टीरिया आर causing the pathogenic substances. Bacteria are the pathogenic substances which cause the pathogenicity in living organisms. इसी तरह से बैक्टीरिया cause the spoilage of the food. खाने को भी खराब करने में बैक्टीरिया responsible है। तो बैक्टीरिया are not only useful but somehow bacteria can be harmful for the living organisms. Now coming to the short topics which are cyanobacteria. तो साइनोबैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। दीज बैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद होता है एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोफिल दे अंडरगो द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्ट्रक्चर की बात करें तो द सेल वॉल इज डबल लेयर्ड। हमें नजर आ रहा है स्क्रीन पे कि सेल वॉल जो है वो ग्रीन कलर की डबल लेयर्ड है। देन दे फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। ये बैक्टीरिया कॉलोनी बना के रहते हैं। सिंगल में साइनोबैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि बैक्टीरिया कॉलोनी बना के रहते हैं। इसी तरह से इनका साइटोप्लाज्म जो कि पूरे सेल में फैला हुआ है, ये दो रीजन्स पे कंसिस्ट करता है, क्रोमोप्लाज्म एंड द सेंट्रोप्लाज्म। यानी कि क्रोमोप्लाज्म वो पोर्शन होता है जो कलर्ड हमें नजर आता है, जबकि सेंट्रोप्लाज्म हमें कलरलेस रीजन नजर आता है। साइनोबैक्टीरिया में डज नॉट अकर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। The last topic of this chapter is nostoc. The body of nostoc is filamentous. हमें नजर आ रहा है कि बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल फिलामेंट्स मौजूद हैं एंड it appears like the beads of jade. तस्बीह के दानों की तरह इसका स्ट्रक्चर हमें नजर आता है नॉस्टॉक। इसकी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। सेल वॉल जो नॉस्टॉक की मौजूद होती है एज सिमिलर टू साइनोबैक्टीरिया डबल लेयर्ड, और सिमिलरली प्रोटोप्लाज्म इसका भी सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म पे कंसिस्ट है। नॉस्टॉक के पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के 3 तरीके होते हैं, हार्मोगोनिया, स्पोरुलेशन और हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट किसे कहते हैं कि नॉस्टॉक के फिलामेंटस स्ट्रक्चर में कुछ जगहों पर या कुछ इंटरवल के बाद, कुछ गैप के बाद एच शेप्ड स्ट्रक्चर हमें नजर आता है and these H-shaped structural cells are called heterocysts। और ये heterocysts क्या करते हैं? ये बॉडी को डिवाइड करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को और इसे 2 ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से स्पोरुलेशन वो टेक्निक है जिसमें अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया या स्पेशली नॉस्टॉक अनफेवरेबल कंडीशन में अपने सेल ऑर्गेनेलीज को डिप्लीट कर देता है, यानी खत्म कर देता है, और सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती है, ये बैक्टीरिया
या नॉस्टॉक अपने सेल ऑर्गेनेलीज को दोबारा से ग्रो करता है, दिस टेक्निक और दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्पोरल फॉर्म एंड द फिनोमेना इज नोन एज स्पोरिलेशन। नॉस्टॉक की ये प्रॉपर्टी भी है कि दे फॉर्म एसोसिएशन विद अदर स्पीसीज, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये एसोसिएशन बना के रखते हैं। So this is all about chapter number 4, bacteria and cyanobacteria. Wish you all the very best of luck.